ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز سے سفیر ربانی تلاوت کلام مجید سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے کہ کر دل کو عطا سوزے دوامی یا رب، ہر سانس ہو رحمت کی پیامی یا رب، اور رنگے شہی کی نہیں حاجت مجھ کو، کافی ہے محمد کی غلامی یا رب۔ سامعین سے احتشام، جیسا کہ میں پہلے یہ اعلان کر چکا تھا کہ آج کی یہ ادبی نشست دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ گفتگو کا ہے، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے اور اس کا موضوع یہ ہے کہ کالم نگاری کا رجوع زبان۔ تو میرا خیال ہے آج کے عصر حاضر میں اس طرح کی گفتگو کی اشد ضرورت ہے کہ جب ادب لوگوں کے دلوں سے جو ہے وہ تہی تر ہوتا جا رہا ہے، اور جس طرح کے تمام علوم و فنون جو کہ جدید مشینری اور جدید علوم و فنون ہیں، ان کی نظر یہ ادب جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ادب کے پروردہ لوگ ہر دور میں یہ ثابت کرتے آئے ہیں کہ ادب تھا، ادب ہے اور ادب رہے گا۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں گفتگو کے لیے کالم نگار، صحافی اور صداکار، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ حق کی آواز، حق میں اس کے جو ہے وہ صدر و بانی، آپ میری مراد یعنی خالد مجید صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی اس ادبی نشست میں کالم نگاری پر گفتگو کریں گے۔ خالد مجید صاحب، آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومان صاحب، آپ کا، آپ کے دوستوں کا، سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بلایا۔ میں بہت خوش ہوں، بہت عرصے کے بعد طاہر صاحب سے بھی بہت اچھی سی ملاقات اور نشست ہو رہی۔ سید صاحبہ ہمارے شہر کی اچھی توانا آواز بھی ہیں، ہمارا تعلق بھی، واسطہ بھی۔ یہ تقریبات جو آج کل ہوتی ہیں نا، یہ میرے خیال ہے زیادہ اچھی اس لیے لگتی ہیں کہ یہاں پہ بہت دنوں کے بعد ہم لوگ مل رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم لوگ اتنے کاموں میں پھنس گئے ہیں یا ہمارے دائیں بات مسائل اور کرونا اتنا شدید ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ایک دوسرے کے لیے۔ خوشی ہوتی ہے جب ہم بہت سارے دنوں، بہت سارے مہینوں، بلکہ اب تو یہ کرونا کی وجہ سے 1 سال کا ایسا گزرا ہے کہ بہت سے لوگ نہیں ملے۔ گمان کا بہت اچھا گمان کہ سارے میرے سر بیٹھے ہیں، بہت شکریہ۔ موضوع ہے کالم نگاری۔ وہ یہ کہ کالم پہلے وہ لوگ لکھتے تھے جو شاعر ہوتے تھے، پہلے کالم وہ لکھتے تھے جو ادیب ہوتے تھے، پہلے کالم وہ لکھتا تھا جن کا نام نسیم حجازی ہوتا تھا، کالم وہ لکھتا تھا جن کا نام منو بھائی ہوتا تھا، کالم نگار وہ تھے جو عباس اچھر ہوتے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا تھا، حافظ غزنوی صاحب کالم لکھتے تھے۔ کالم لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کالم، مضمون، فیچر، کالم اور مضمون میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مضمون اسکول کے بچے بھی لکھتے ہیں، کالج کے بچے بھی لکھتے ہیں، اساتذہ بھی لکھتے ہیں، تو مضمون نگاری اور ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک وقت ایسا آیا کہ جب کالم نگار بے روزگار ہوئے تو بہت سے لوگ کالم نگار بن گئے۔ انہوں نے کالم لکھوانے شروع کر۔ پہلے کالم لکھے جاتے، باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے، باقاعدہ لوگ سوچتے تھے کہ جی ہم نے کیسے لکھنا ہے، کیسے اس کے لیے کام کرنا ہے، کیسے ہم نے پڑھ کے لکھنا ہے، تحقیق کرنی ہے۔ ابراہیم جلیس لکھتے تھے تو لوگ، میرا خیال ہے بہت سے نام ایسے ہوں گے، طاہر صاحب کو یاد ہوں گے، ظاہر ہوتا ہے ان کی دنیا ہے۔ کراچی میں بیٹھ کے ابراہیم جلیس صاحب جب کالم لکھتے تھے یا ابن انشا جب لکھتے تھے تو آپ یقین کریں کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک مزاج اور ایک چاہیے، لفظ اندر سے بولتے تھے، پتہ چلتا تھا۔
ایک وقت پھر ایسا آ گیا، یہ 2002 کے بعد کی بات ہے، لوگوں نے کالم صرف پرونے شروع کر دیے، قلم سے اندر سے باہر نہیں نکلتے، لفظ جو تھے وہ اندر ہی کہیں روک گئے۔ آپ لوگوں کی اجازت ہے نا، میں 2-3-4 چیزیں اس لیے ساتھ لے پا رہا ہوں کہ اس کے ادب کی چاشنی جو ہے آج کے کالم میں کم ہونی چاہیے۔ ایک وقت تھا جب نسیم حجازی صاحب لکھتے تھے، آپ بلوچستان میں کوئٹہ میں رہتے تھے، بلوچستان میں بیٹھ کے آپ وہاں بیٹھ کے لکھ رہے تھے۔ کسی زمانے میں مشرق اخبار میں کبتوتی بولتا تھا، اور اس میں لکھنے والے لوگ جو ہیں جب کالم لکھتے تھے تو سنڈے والے دن اتوار کو سنڈے مشرق کا جو اسپیشل ایڈیشن ہوتا تھا، لوگ اس کے لیے باقاعدہ گھروں سے بچوں کو بھیجتے تھے یا خود جاتے تھے لوگوں کو۔ ان کو تربیت ہوتی تھی کہ جی اس کو ہم نے جا کے لے کے آنا ہے، پڑھنا ہے، بچوں کو سنانا۔ میرے نانا مجھے سنایا، میرے والد صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے کہ آج کے اخبار میں فلاں کالم پڑھی ہو۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ میں سے بہت سے دوست ایسے ہوں گے وہ اخبار لیتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، الف سے لے کے یہ تک سارے صفحے گھما دیتے ہوں گے، صرف ایڈیٹوریل پیج نہیں پڑھتے، ہم بھی نہیں پڑھتے، لیکن جب شوق ہوا، جب سمجھ آ گئی کہ اصل تو یہ ہے، اصل یہ ہے، اور اس سے آگے بڑھنا۔ حسن نثار صاحب کا کالم ہم نے الفتح میں پڑھا، یہ 77-78 کے دور کی بات ہے۔ الفتح ایک دن آتا تھا، اس میں ان کا کالم لکھا۔ آج کل لوگ الفتح تو نہیں، لیکن جنگ میں اور ایک اور ہمارے جہاں میں ان دو جگہ پر ان کا کالم لکھا۔ اس کالم میں ان کا مزاج بالکل الگ تھا، وہ مزاج ہے، مزاج بن کے بات ہے۔ نذیر حاجی صاحب کا مزاج بالکل الگ ہو گیا۔ ہم نے ان سب دوستوں جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں، مجھے فخر ہے، مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی اخبار میں، کسی نہ کسی جگہ پہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کام ان کے ساتھ کیا ہے۔ ماشاء اللہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے سیکھتے ہیں، تو آپ کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ بہت پہلے چیزیں ہیں، مطلب لکھنے کے لیے آپ کی علمیت پڑھے بغیر نہیں آتی، آپ کے اندر کچھ نہ کچھ آنا چاہیے۔ میں گفتگو کو غور نہیں کروں گا، ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ کو چیزیں بتاتا ہوں۔ دانا صاحب میں نے 2 ناموں سے کالم لکھے، میں گستاخیاں میرے لوگوں پچھلے 20 سال سے 25 سال سے، اگر کہیں لاہور کے لئے خبریں میں پوچھیں کہ جی گستاخیاں تو کہیں گے خالی پوچھیں، اب پشاور چلے جائیں وہاں پہ مسجد میں پوچھیں تو وہ کہیں گے خالی پوچھیں، مطلب یہ میری پہچان ہے۔ اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا کہ کسی نے مجھے پہن کر دیا کہ جی بند کرواؤ، یہ زیادہ بولتا، تو میں نے اپنا کالم کا نام چینج کیا، تو فشار قلم رکھا۔ ٹھیک ہے، ابھی بالکل ایک پیور ادبی سا نام تھا، کہاں گستاخیاں اور کہاں فشار قلم۔ فشار خون تو سنا تھا، فشار خون تو نکل گئی ہے، فشار قلم میں آ گیا، تو مجھے نام بھی چینج کرنا پڑا۔ میں نے اپنا نام گستاخ رکھا، 2-3 ناموں سے میں لکھتا رہا۔ کچھ عرصہ میں نے سقراط کے نام سے لکھا، کچھ عرصہ گستاخ کے نام سے۔ بہن مجھے نہیں جب آتی، حسن نثار صاحب نے بلکہ لکھا کہ خدا کرتا ہے کہ تم سے بہن نہ ہوتے، جیل بھی چلے جاتے، تو ہم تمہیں چھڑانے کے لیے مفت جاتے ہیں۔ لکھنے میں آپ کو دائیں بائیں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ مطلب ایک دفعہ لکھا کہ کاغذ آپ کی اجازت سے چھوٹے چھوٹے 2-4 پیراگراف ان لوگوں کو الگ الگ مزاج کے کہ لڑائی جھگڑا بھی کرنا ہے، اپنی بات بھی پہنچانی ہے، لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ فشار قلم کا ایک چھوٹا سا بند ہے کہ گوشہ دانائی کے کمرہ تنہائی کے اب کھلے دروازے سے، جو لفظ ہے گوشہ دانائی کا کمرہ تنہائی، یہ میری اس طرح تھی، اور جو ہم نے جھانکا تو اندر استانی سیانی بڑے انہماک سے اپنی بنٹوں جیسی آنکھیں گستاخ جی کے چہروں پہ جمائے غور سے بات سن رہی تھی، جبکہ گستاخ جی کہہ رہے تھے کہ نہ تو اب بلوں کے لیے جی ٹی روڈ پر بریکیں لگ رہی ہیں، ہم نکل گئے نا باہر،
न किसी की गुप्त गिट्टे चुन रही है। गाना था ना, गिट चुमे गिट्टियां, इसी तरह गुप्त चुमे गिट्टियां। मैं इसकी बात आपको इसकी रीजन बताऊंगा। न कोई किसी को साइकिल पे बिठाने की जिद कर रहा है, आजा बेटे साइकिल। न कोई काला जोड़ा पहनकर सामने आने की फरमाइश कर रहा है, न कहीं किसी के हुस्न को चांद और जवानी को बदल होने का ऐलान किया जा रहा है, न कोई 13 शबों के साथियों की ख्वाहिश कर रहा है, और न कहीं दिल हुआ वो काटा के खुद के अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं, न कहीं पहले से मोहब्बत मांगने का के लिए झुका जा रहा है। बल्कि आप टीवी ऑन करें तो यूं महसूस होगा कि सामने लहू चूसने वाले 4 लोग बैठे हैं और उनके दरमियान एक इंसान ऐसा भी है जो उनको लड़ाने पे उकसा रहा है, वो लड़ने पे उकसा रहा है। न तमीज, न तहजीब, न शाइस्तगी, इखलाक से आरी लहजे लिए खुद साख्ता दानिश्वरी के पहाड़ बनाने और चाय की प्याली पर तूफान उठाने के लिए सरे शाम आ धमकते हैं और हमारे टीवी पे कब्जा करने। हम टीवी देखेंगे ना देखें, ये एक मिजाज है कि मैंने अपने ही पेटीबंद भाइयों के लिए कहा। हम टीवी देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर, कॉलम मैंने शुरू कहाँ से किया है और कहाँ आपको लेके सारा उस तनाजुर में लिखा गया कि जी हम चाहते क्या थे और हमने किया क्या। हमें शाम के टाइम पे सब जब थके हारे घर में जाते हैं तो हमें थोड़ी सी देर के लिए सुकून भी चाहिए होता है। कभी कभी ऐसे होता था कि शाम को हम 50-50 देख लिया करते थे, लेकिन अब हमारा वो टाइम यहाँ चला। मतलब इस तरह की चीज़ें जब आप जोड़ते हैं ना कहीं से, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि हाँ, कि हमने किस तरह अपने कार्य को अपने साथ लेके चलना है, ये कॉलम। लेकिन अगर इसी को मजमून में लेके आएंगे तो मजमून जैसा खुश हो जाएगा, आपको मानने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। उरूज और जवाल दोनों के दरमियान के जो एरिया है ना, पहले हम उस पर 4 अप्रैल 1979 पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम दिन है। उस दिन भुट्टो साहब को फांसी दी जाती है, ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह पे। 4 अप्रैल 1979 के हवाले से रावलपिंडी की सड़कों पर दहशत, वीरानी, खौफ की हुक्मरानी थी। वक्त की सुइयां जो आगे को सरकती जा रही थी, तजब्जुब बढ़ता जा रहा था। एक अनजाना खौफ था जो जुबान पर लाने के लिए कुछ तैयार न था। इंसान एक दूसरे के चेहरे को खोजते खोजते गुजर रहे थे। इन्हीं सोचों के अंबार का हर धारा नदी पर जाकर रुकता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे फांसी की सजा नहीं देंगे, वो उसे उम्र कैद की सजा देकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की कालकोठरी में बंद कर देंगे। वो हमेशा के लिए उसे मुल्क बदल कर देंगे। वो उसे किसी ऐसे मुल्क में भेज देंगे जहाँ वो पाबंद रह सके। फिर सोच नए दाखिले लेकर जहनों पर सफ़र करना शुरू कर देती थी। वो कोई आम इंसान तो नहीं है, उसने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। वो पाकिस्तान का पहला मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, उसने मुल्क को आइन दिया, दौलत पाकिस्तान को यकजा किया। वो नए पाकिस्तान का पानी है, बेशुमार फौजियों को भारत की कैद से वापस लाया है। उसने गलतियों से पाक पुराने पाक की तैयारी मुकम्मल कराई है। उसने इस्लामी ममालिक को एक जगह इकट्ठा किया है। सबसे बढ़कर ये कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने का कानून बनाया। उसने इस्लामी नजरियाती काउंसिल का क़याम किया। उसने जुम्मे की छुट्टी ओपन यूनिवर्सिटी का क़याम, कामरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे सब इदारे उसी ने बनाए। अब ये बिल्कुल पहले वाले से और इस वाले में हम बिल्कुल मिजाज और माहौल को बिल्कुल तब्दील महसूस करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ऐसा जुल्म हुआ है, जब हम ये सहाफ़त है ना, सहाफ़त में बहुत सारे ऐसे जुल्म हम लोगों ने देखे जो आप लोगों ने सुने नहीं। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के एक वज़ीर तालीम ये कह दे कि तालीम पे बहुत खर्चा हो रहा है, तालीम पे बहुत खर्चा हो रहा है, मुझे मैट्रिक तक के बच्चे के लिए कम से कम सालाना 1 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है।
بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی لیکن اس کو کسی نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا. میں نے ریئیکٹ کیا تو مجھے ہیلپ کر دیا. جو میں نے لکھا تو یہ ہوا کہ جی اس پہ ہٹانے کا دعویٰ کر دیا. میرے پہ ہٹانے کا دعویٰ ہوا. جو میرا ترازو میں ایک طرف مجھے رکھیں اور دوسری طرف اس رقم کو رکھیں تو وہ رقم زیادہ ہوگی, میرا وزن کم ہو جائے گا. وہ اتنا زیادہ تھا. ان کا فرمانا یہ تھا ریسپانسر کی وجہ کرو. تو آپ نے یہ پین لیتے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھے ماحول میں اچھی باتیں سامنے آنی چاہیے کہ ایسا کریں گے تو نقصان ہے. تو میں نے جب ان سے یہ کہا کہ جی تعلیم اور وزیر تعلیم, انہوں نے یہ کہا کہ 1.5 لاکھ بچے میٹرک تک تعلیم حاصل کرتے ہیں. پھر ان کی رقم کا انہوں نے وابستہ شروع کر دیا. میں نے ان سے گزارش کی کہ وزیر تعلیم صاحب, آپ کے اپنے بچے تو کانوینٹ میں پڑھتے ہوں گے اور انہیں فارغ جب وہ تعلیم حاصل کر رہیں گے تو انہیں کسی آفس میں کلرک نہیں بھرتی ہونا, کیونکہ ساری زندگی ان کے نام کے ساتھ آپ کی وزارت کا سفارش نامہ اور رشوت چلتی ہوگی. انہیں کہیں بھی نوکری مل جائے گی, وہ کہیں بھی رہ سکیں گے, وہ کہیں بھی مل جائے گی. آپ ایک کام کریں فرعون کی طرح. اب میرے پکڑے جانے کی کہ آپ بھی فرعون کی طرح ایک منادی کرائیں اور ہر شہر کے دریا کے کنارے یہ بینر آویزاں کروائیں کہ اس شہر میں کوئی بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. یقیناً شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اس پر عمل کرائیں گے. شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اس پر عمل کرائیں گے اور پھر بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن یاد رکھیے گا اس دور میں بھی موسیٰ پیدا ہوا تھا. میرا یہ معلوم موسیٰ کے روپ میں آپ کے سامنے آئے اور میں نثار ناصر کی طرح یہ کہہ دوں وہاں مجھے صورت موسیٰ بہاد نہر میں قتل طفلاں کی منادی ہو چکی ہے. یہ تو مقامات عمل ہے کہ ابراہ کے لیے ابابیلیں آتی ہیں, نمرود کے لیے ابراہیم اور فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے. آپ کے لیے ہو سکتا ہے کوئی خالق مجید ہو. میں بین ہو گیا. میں ہو گیا یار. دین میں رکھنا, انہوں نے آنا ان کو لے آئے گا. لیکن ہمت نہیں ہاری. ایک حوصلہ تھا, لگن تھی کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا اور کرتے رہے. آج تک جی میں نے آپ کو بات کی ڈیٹ لکھی ہے 13/10/1998. میں نے 98 کے بعد اتنا عرصہ بند تو نہیں کیا, لکھتا رہا پڑھتا رہا. بغیر پڑھے لکھ نہیں سکتے. جب تک آپ کتاب سے محبت نہیں کریں گے آپ لکھ نہیں سکتے. آپ کتاب دوست ہو جائیں گے. کتاب صرف دوست ہونا ضروری نہیں, کتاب کو پڑھنا جو ہے بہت ضروری ہے. مان لیا کہ موبائل نے بہت سہولت دے دی, بہت ہمیں کتابیں اس کے اندر دے دی. موبائل ٹوٹ گیا, میری کتاب گر گئی, ختم ہو گئی. تو پھر اگلے 1 دن 2 دن کے لیے میں کچھ نہیں کر سکوں گا, کیونکہ رات کو 12-1 بجے تو میں موبائل خریدنے نہیں جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میری جیب میں پیسے نہ ہوں. یہ سچ بھی ہم لوگ بولتے ہیں, یہ سچ بھی ہم لوگ بولتے ہیں. میری آنکھوں کا آپریشن تھا, میں 2014 میں بلائنڈ تھے. ٹوٹلی بلائنڈ. میں نے ہمت نہیں ہاری. میں ڈاکٹر کے پاس جب گیا تو اس نے کہا کہ آپ 5 سال تک نہیں دیکھ سکتے, اور اگر دیکھنے کی پوزیشن میں آئیں گے تو صرف 5% دیکھ سکیں گے. 6% کی میری کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس دن اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا تو مجھے یاد آیا کہ خدا نے مجھے بچپن میں کہانی پڑھنے, کتاب کو دیکھنے اور اس کو یاد کرنے کا جو ذوق اور شوق دیا وہ اس موقع کے لیے دیا. میں پورے حلف کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں, پورے ایمان کے ساتھ. میں ریڈیو کا صرف رائٹر ہوں, وہاں پہ بولتا ہوں, لکھتا ہوں, پڑھتا ہوں,
मैंने अगले दिन जाके कहानी पढ़नी थी। मैं एक प्रोग्राम करता था आज की कहानी, मेरा किससे ये पूरा कागज है, इस तरह का पेपर मेरे पास था। मेरे दोस्त सलीम मुमताज मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के रेडियो लेके गया। रात को मैंने कहानी अपनी बीवी को और बेटी को लिखवाई, उनसे कहा कि एक दफ़ा मुझे सुनाओ। मैंने सुन ली। ये जिस तरह मैं देख के आपको सुना रहा हूँ, कहानी में इससे ज़्यादा अच्छे से सुनाता था मैं। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा कि अगर किसी तरीके इन लोगों को ये पता लग गया कि ये तुम्हारा कागज़ खाली होता है तो फिर क्या होगा। मैं कहा जिस खुदा ने मुझे यहाँ बिठा के ये पढ़ने का, बोलने का, लिखने का वक्त दिया है और ये शर्फ भी बख्शा है मुझे, उसने उसका एहसान है मेरे पे, वो मुझे इनसे बचा के रखेगा, इनको किसी को नहीं कभी पता चलेगा। खुदा ने इनको, वो मेरा पर्दा चाक नहीं किया क्योंकि खुदा सबके पर्दे रखता। किताबें जरूर पढ़ें। किताब आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, वो आपको इतना कुछ सिखा देती है। मैंने इतनी कहानियाँ, इतनी चीज़ें पढ़ी। हम छोटे थे तो एक आना लाइब्रेरी के इतने सती सारा पढ़ लिया और मैं 9 साल का था। इतना इतने सती पढ़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। वालिद साहब हमें तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम बचपन जैसे हुआ ये कि मैं भी उनसे कह रहा था सैर के देखें इन्होंने बच्चों ने हमें जिन कुर्सियों पे बिठाया ये हमारे बचपन में चले गए। और उनको मैं वो सुना रहा था कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो हमें बिल्कुल बचपन में ले गए, इस तरह की कुर्सियों पे बैठ के पढ़ना लिखना। तो मुझे आना लाइब्रेरी इसलिए याद है, एक आने की किताब मिलती थी, माँ बाप खुद हमें कहा करते थे कि लाइब्रेरी से किताब लेके आओ और पढ़नी है, नेकी की कहानियाँ। अच्छा, वो हमारे जो मुसलमान से पतला, फिर थोड़ी सी आगे उम्र गई तो नसीम हिजाज़ी साहब, उनको अच्छा हमें तो ये भी फख्र है ना, खुशी है कि नसीम हिजाज़ी साहब भी पड़ोस में रहते थे बी ब्लॉक में, तो हम तो उनके पास यहाँ बैठ के मिलते उठते बैठते रहे। ठीक है, मुझे एक नाम अभी याद आ जाता है, बहुत बड़ा नाम है, मुशर्रफ अंसारी के वालिद साहब, बहुत अच्छे क्वालिटी का, बहुत अच्छे और इंतहाई सख्त मिला। उनके साथ काम करने का मौका मिला तो वो भी मज़ा आया। उनके सिखाने का, समझाने का एक अलग अंदाज होता था। ये कॉलम में नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं, पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू करो, इस तरह वो पढ़ाने की तरफ राग़िब करते थे। मैं बराह रास्त प्रोफेसर शौकत वास्ती साहब का शागिर्द। शौकत वास्ती साहब ने हमें उंगली पकड़ के सिखाया, किताब से मोहब्बत। शौकत वास्ती साहब ने, नासिर जैदी साहब ने, इन लोगों ने किताब से मोहब्बत बताई। लफ्ज़ों को आगे बेचना कैसे है, बड़ी माजरत के साथ सच बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर यासिर रिजवी ने सिखाया। उन्होंने कहा कि जब तुम लिखते हो तो इसकी कीमत होनी चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने हमें किताब से मोहब्बत का जितना शौक शौकत वास्ती साहब ने और नासिर जैदी साहब ने और इन लोगों ने, बाकी जो थे जो हमें ज़बरदस्ती किताबें देते थे पढ़ने के लिए और फिर कहा करते थे आओ अब बैठ के बताओ यार वो किताब पढ़ के देखी। तो हम लोग वो पढ़ते, किताब पढ़ते थे। किताब पढ़ने के साथ मसूद अनवर शफ़ी साहब नवाब मशरिक़ के एडिटर थे। 77-76 में हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्होंने बुला दिया यार कहानी लिखो, कि अखबार में थोड़ा सा कुछ लिख दिया। मैं कहती मुझे तो खबर बनानी नहीं आती। मुझे खबर बनाने की तो बात ही नहीं है, जो देखते हो उसी को लिखो, मैं बताऊंगा ठीक है। मैंने ज़िंदगी की पहली रिपोर्टिंग 81 में की, जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। तारा सबको याद होगा, आप लोगों को नहीं याद होगा। 1 रोज़ा मैच होता था या फिर 3 रोज़ा मैच होता था, उसके बाद 5 रोज़ा मैच होता था और कुछ नहीं होता। 3 रोज़ा मैच था और उस दिन रिपोर्टर उनका छुट्टी कर गया, तो रात को मुझे बताया शक्ति साहब ने कि यार कल ऐसे करो कि जैसे मैच देखो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उस ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें भी नहीं होती थी, जो जंगले वाले 1.5 फुट का एक वो लगा था कपड़ा था, और कोई बंदा, चाहे हम जैसे शरारती स्टूडेंट थे या कोई महज़र आदमी थे,
वो उसको फलान के अंदर ही जाता था। सब आराम से बैठ के मैच खेलते थे। मैच खत्म होने के बाद सब लोगों को इजाज़त होती थी कि अंदर चले जाओ। जिसकी हिम्मत होती थी वो जाके क्रिकेटर से मिल पाता था, जो मिल लिया 100 गज मिला, जो रह गया वो रह गया। मतलब ये दौर था। और मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई उस वक्त के क्रिकेटर जो पाकिस्तान के थे या इंडिया के थे जिनको हम लोग नहीं मिले, जिनसे आग्रह किए, उनसे बातचीत की, फिर उसको भी हम लोगों ने उसको कॉलम में देखा। ये हमारे इस तरफ जाने की सभी बातें इसी तरह हो सकती है। मैं जवाल की तरफ, इसमें जवाल का 2 लाइनों में बताऊंगा। रूट की बातें करते हैं। रूट उसी वक्त होता है कि जब आप पढ़ाई के साथ करते हैं। सवाल अगर किसी के ज़हन में हो तो सवाल कोई चीज़ होगी वो सवाल आपको मेरा ख्याल है आपकी बातों के जवाब मेरी बातों के अंदर से मिल भी रहे होंगे। एक चीज़ थी, आपने देखा होगा, ये बहुत ही अहम दिन है, अलमिया और लोहा। 9/11 सबको याद है। धुएं के सिया बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। सड़कों पर आंखों बक्का चीज़ को पुकार शुरू हो गई। लोग दीवानावार दौड़ते, चीखते, चिल्लाते, मुंह उठाए आगे चले जा रहे हैं। खौफ से फैली आंखें, हैरत से खुले मुंह, चश्मे पलटने सितंबर के दूर से, अशरे में दौलत, इक़्तिदार, इख्तियार और सुपर पावर होने के नशे में धुत और बदमत कौम को देखा। इन बदमत हाथियों ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का जो अहद कर रखा था, तमाम अक़वाम की इक़्तिसादी हालत को अपने इशारों पर लाने का कोई हरबा, कोई हीला, कोई बहाना और कोई तरीका हाथ से नहीं जाने देते। यही लोग हैं जिन पर कश्मीर की रोती सिसकती बिलकती जिंदगियां कुछ असर नहीं करती। यही लोग जिन्हें बोस्निया के, जिन्हें कोसोवो फिर इन पर हाथ साफ करने के तरीके सोचने पड़ते हैं। यही लोग हैं जो अपने मफादात के लिए किसी को खातिर में नहीं लाते। जब अपने मकासद और मफादात हासिल कर लेते हैं तो मोहसिनों को सफा हस्ती से मिटाकर ही दम लेते हैं। इन्हीं बदमस्तों के लिए 11 सितंबर का दिन तारीख का बदतरीन दिन बनकर आया। हर तरफ आग, खून, बारूद, इंसानी खून और फिर लाशें ही लाशें। पूरी दुनिया अंगश्त बदंदा रह गई। खौफ और हिरास पूरी दुनिया के इंसानों के चेहरों पर चिस्पा होकर रह गया, ये जैसे कब्र का तख्ता। तो ये ऐसे ही हुआ कि उन लोगों ने उनके लिए भी तो खौफ था, एक लम्हा था। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि ये मैंने लिखा है, मैं इसलिए इसके पैराग्राफ थोड़ी देर सुना रहा हूँ कि इनमें मुख्तलिफ मिजाज है, मुख्तलिफ चीज़ें। आपने पिक्चर देखा, उसमें बिल्कुल आपको बिल्लो के गाने नजर आ रहे हैं। उसके बाद वो गाने के लिए आपने सोचा जाएगी अच्छा खासा चीज बात भी लग रही है कि हमारे दौर के गानों को लेके चल पड़ा। लेकिन जब आप लिख रहे हो तो आपके दाएं बाएं हर चीज़ होनी चाहिए। हो सकता है इनमें वो एक ऐसा भी कोई मैंने रखा हो, शायद वाली बातें लिखी हुई है कि कुरान की फलां आयत में खुदा ने ये कहा, कुरान की फलां आयत में ये कहा है, कुरान की आयतों में ये लिखा है कि हज़रत मूसा की कौम को इसलिए तबाह किया गया, हज़रत नूह की कौम को इसलिए तबाह किया गया, हज़रत नूह की कौम को, हज़रत लूत की कौम को इसलिए तबाह किया गया। तो एक लम्हे के लिए रुक के गौर करें, क्या उन सारे नबियों की कौमों की बुराइयां सिर्फ हम में शामिल नहीं हो गई? मुझे किसी ने पकड़ लिया, यार ये तुम क्या कहते हो? मैंने कहा सच कह रहा हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। ये भी किसी नबी की कौम थी तो तबाह हुई, कम तोलते थे, उनकी कौम तबाह हुई, हम भी तो कम तोलते। अगर दूध की कौम तबाह हुई, वो बुराइयां हमने भी तो। हम इखलाकी बशरी तमाम इखलाकी पस्तियों में हैं, लेकिन हमें हमारा रब हमारे नबी मोहतरम की वजह से छूट दिया जा रहा है कि माफ़ी मांगो। ये भी एक किसी कॉलम में इस तरह की बात है। आप लोगों को एक चीज़ सुना के आप लोगों की तरफ से करूँगा कि आप लोगों के ذہن में कोई बात हो, उरूज ज़वाल के दरमियान की थोड़ी सी बात में ख़त्म करके आखिरी में आते हैं। दादा सर, आपको याद है, पता नहीं और किस किस को याद है, 0 पॉइंट्स पे किसी ज़माने में एक साख्ता होती थी, जब पुराना ये नया पुल बनने से पहले की बात है।
जैसे ही हम 0 पॉइंट क्रॉस करते थे तो लेफ्ट साइड पे सीडीए ने एक फाख्ता बनाई थी, उसके मुंह में जैतून की शाख थी, ऐसा ही था याद है। बल्कि उस दिन वो मेरे साथ अरशद मलिक साहब बैठे हुए थे और अब्दुल गुमान साहब थे, तो मैंने इनको याद कराया, मैंने कहा कि उस लम्हे को, उस मूवमेंट को मैंने लिखा था। तो वो ये कि अचानक सीडीए के प्लान में आ गया कि ये पुल बनाना है, ये जो भी वो क्या कहते हैं ओवरहेड ब्रिज जो भी सारा कुछ जो भी बना है, इसके बनाने का प्लान किया। तो उन्होंने रातों रात वो जो फाख्ता थी उसको थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया, उस पर पत्थर फेंक के अंदर से वो फुहारा चला दिया और सब कुछ चल गया। लेकिन मैंने उसे किसी और तरह से देखा, मैंने देखा कि अमन की फाख्ता पे संग आ गई, अच्छी खाली बेचारी हमें नजर आ रही थी, तो उससे उन्होंने बहुत सारे पत्थर इतने ज़्यादा फेंक दिए वो हर तरफ से कवर हो गई और उनमें से पानी नजर आने लगा। ये इस्लामाबाद यहाँ ग्रेड सिस्टम है, स्केल की इजारादारी है, यहाँ ही असल वीआईपी कल्चर है। पड़ोसी के घर होने की आवाज़ सुनने पर फोन करके पूछा जाता है कि घर में शोर कैसा है, ऐसे ही। जब किसी मर्द के बारे में इल्म होता है तो किसी फंक्शन में सदारत के लिए जाने का कहकर वापसी पर आने का वादा कर दिया। यहाँ मर्द का अफसोस भी अंग्रेजी में किया जाता है। यहाँ कानून बनते हैं, लागू होते हैं, यही वो शहर है जहाँ असेंबली बनती है, टूटती है और कभी कभी बहाल हो जाती है। इसी शहर इख्तियार में चंद लोगों के मुत्तफिक न होने से कोई 11 साल मसनदे इख्तियार पर बरजमान रहता है। इसी शहर में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की सजाए मौत को उम्र कैद में नहीं बदला जाता। इसी शहर में सदर की तकरीर के दरमियान गो बाबा गो के नारे लगते हैं। इसी शहर में कोई डिक्टेशन न देने की बातें करता है। इसी शहर में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए हर रास्ता बंद कर दिया जाता है। इसी शहर में नामूस रिसालत के नाम पर निकाले जाने वाले जुलूस पर फायरिंग होती है और बच्चे शहीद कर दिए जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाओ, क्योंकि यहाँ पे वो इसी शहर में मुंतखब सदर की तकरीर में एहतजाजन एक एमएनए उठ के चादर मार देती है। इसी शहर में तालिबा के कत्ल का कोई नतीजा नहीं निकलता। इसी शहर में एक लड़की अपने मंगेतर को गोली मारती है और इसी शहर में मुंतखब हुकूमतें कानून का मजाक भी उड़ाती है कि एक हुकूमत कानून बनाती है और दूसरी कानून तोड़ देती है। इसी शहर में नाअहलों को अहल होने की सनद मिलती है। वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके अहल लोगों का हक मारते हैं। इसी शहर में कोई घोड़े पालता है, कोई कुत्ते पालता है, कोई मिष्टंडे पालता है। इसी शहर में रातों को साजिशें तैयार होती हैं और तमाम तर हंगामा आराइयों के बावजूद ये शहर अमन है, यहाँ सुकून है। इस बात का उस वक्त एहसास बहुत ज़्यादा होता था जब हम 0 पॉइंट के पे लगे बेमकसद सवारों के पास एक फाख्ता और उसके मुंह में जैतून की शाख लेते, उसके मुंह में जैतून की, उसकी चोंच में जैतून की शाख हमें एहसास दिलाती थी कि हम शहर अमन में हैं। और फिर अचानक चंद दिन अपनी मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद न जा सका। कल रात यूँ हुआ कि वो अलामत जो अमन की अलामत थी उस पर देखा तो हर तरफ से पत्थर ही पत्थर पड़े। बेचारी को जिंदा दरगोर कर दिया गया था। दिल दहल कर गया। अमन के बारे में तमाम मनफी बातों ने सर उठाया। शक ने नाक की तरफ फन फैलाया। वसवसों ने बहुत देर घेरे रखा। तमाम दिन परेशानी में गुजरा, लेकिन रात को ये कहकर खुद को मुतमईन कर दिया कि ये तो हमारा वतीरा है कि एक कुछ बनाता है और दूसरा उसको तोड़ देता है। यहाँ तो मुस्तफिका आइन को अपने तरजीहात के लिए मोड़ दिया जाता है। ये तो बेचारी अमन की बात है।
नहीं करता। कॉलम मैंने बताया नसीम हिजाज़ी सबसे पहले भी लिखा, अनायतुल्लाह खान भी कॉलम लिखते और वो मज़ामिन लिखते थे। अताउल कासमी सर लिखे तो आपको हंसी आ जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। हसन निसार साहब को आप पढ़े तो आप जज्बाती हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पत्थर मार दिए। लोग कहते हैं यार इन्होंने पत्थर मारा, अगर उनकी बातें सच होती हैं और सच कड़वा होता है। अपने अपने दौर को लिखा जाता है, अपने अपने माशरे को लिखा जाता है, अपने अपने दौर के माशरे की वो जो नासूर हैं उनको चाहे हम अलामती तौर पर दिखाएं और कुछ लोग बिल्कुल सामने बताएं। ऐसा लिखने के बाद अगर बयान कर दिया जाए तो खुशी होती है, दुख नहीं होता कि मैंने अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए नहीं, पूरे शहर के, पूरे मुल्क के बच्चों के लिए अगर बात करूं तो 2 दफ़ा बैन कर दिया गया, बहाल हो गया। इतना जुर्माना आज से 98 में इतने नोट मेरे ख्याल किसी ने भी नहीं देखे होंगे जितने का लाहौर हाई कोर्ट ने मेरे पे वो क्या था नोटिस भेजा था, हमने नहीं देखा। मेरे अंदर इखलाकी जरूरत थी, मैं वजीर साहब को मिलने चला गया और उनको ये नहीं बताया कि मैं हूँ। उनको ये बताया कि जी ये गुमान साहब आपसे मिलना चाहते हैं, मैं इनके साथ कैसे आऊँ। उनके कमरे में बैठ के जब उनको बताया कि जी मैं वो हूँ, तो वो मुझे देख के हैरान हुए, ऐसा परेशान हुए हूँ यार ये कैसा आदमी है कि आ गया है। मैं कहता हम लोग जो ये सब कुछ करते हैं, हमारे पास ना पैसे हैं ना इख्तियार है, अभी कलम है, इसके साथ सच लिखने की कोशिश करते हैं और उसमें अगर सजा मिलती है तो बर्दाश्त कर लेते हैं। हालात खराब कहाँ हुए, हमारा ये प्रोफेशन था, हमारा शौक था, उसके बाद हमने इसको निहायत ईमानदारी से अपना लिया, लिखने को, पढ़ने को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। मेरे पास सिवाय लिखने के और कोई काम ही नहीं। मैं रेडियो के लिए लिखूँ, मैं स्टेज के लिए लिखूँ, मैं फिल्म के लिए लिखूँ, मैं टीवी के लिए लिखूँ, मैं अखबार के लिए लिखूँ, और तो मैं कुछ नहीं करता। लेकिन अगर एक साहिब सरवत इंसान जिसके पास बेतहाशा पैसा हो, वो लिख नहीं सकता, उसके पास लिखने का वक्त भी नहीं, उसने अपने पैसे के दौर पे किसी ऐसे दोस्त को जो ज़रूरतमंद हो कि ये कह के बिठा लिया हो अपने दफ्तर में कि जी आप मेरे कॉलम लिख दो, आप लोगों के मकसद की बातों पर आप सब भी इस चीज़ को एग्री करेंगे, या मेरी शायरी की किताब लिख दो, मेरे लिए कोई और चीज़ लिख दो, लिखे कौन, एनी मैं लिख ये लिखे, और नाम किसका हो, ऐसा होता है। तो वो उन लोगों की जब एंट्री दरमियान में हुई तो कॉलम का जवाब शुरू। हम लोग कहा करते थे कि बहुत माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बहुत सारी माफ़ी के साथ, कि 2002 के बाद ये हुआ कि 2 चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपसे माजरत के साथ, एक ज़मीन की और एक कमीन की। वो लोग जिनके बारे में कमीन कहा गया, उन्होंने मजबूरों की मजबूरियाँ खरीद ली। तो जो जिनका ये ओढ़ना बिछोना था, जिनके ये काम थे, जिनका ये मकाम था, उन लोगों से वो पैसे पुष्ट होते चले गए, क्योंकि पैसा महदूद लोगों के पास चला गया, ज़रूरतें सबकी उसी तरह रही। तो हर चीज़ की तरह यहाँ पे भी ज़वाल आना चाहिए। ज़वाल हमेशा के लिए नहीं होता, ज़वाल को फिर ज़वाल आता है, ज़वाल को फिर ज़वाल आता है, और ये चीज़ें उसी तरह रोशन रहती हैं, दरख्शां रहती हैं, नजर आती हैं। बहुत शुक्रिया।